सो दिस स्ट्रक्चर एज आई टोल्ड यू, अभी तक हमने किया था कि वो जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है वो डिवाइड करना शुरू करता है और वो यहाँ यूट्रस की वॉल में आके इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, ये देखिए अभी यहाँ पे ये एम्ब्रियो, ये यूट्रस की वॉल है, यूट्राइन वॉल। ठीक है, ये यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाता है। क्लियर? It get implanted and further development of this will take place here. Okay, so you see here, this is a uterus, the child has developed now. ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की हम बात करते हैं। See here, internal fertilization take place in the hen also, but the hen they do not give the birth to the chicks like human beings and the cow they do. ठीक है, so the fertilization take place internal and they lay the eggs outside, egg outside. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन जो है अगर वो इंटरनल होगी तो डेवलपमेंट भी इनसाइड द बॉडी होगी। नो, sometime after the fertilization the cell or the eggs are laid outside the body, and based on that the organism are also classified into the two categories. Okay, we will talk about them. These two categories are known as the viviparous and the oviparous. That is also important question है, difference है दोनों के बीच में, viviparous and the oviparous. But before that we will see here what happens after the fertilization. The zygote divide repeatedly and travel down the oviduct. When it goes down, many protective layer around it form. The hard shell that we see in the egg of the hen is the protective layer. ठीक है, protective layer is formed around the developing embryo. ठीक है, same is case with the human beings also. Okay, now coming to the point here, viviparous and the oviparous. Viviparous means which give the birth to young ones. ठीक है, that is the viviparous. And the eggs, oviparous means which give the eggs. ठीक है, I again say those animals which lay the eggs, they are known as the oviparous, and those animals which give the birth to the young ones are known as the viviparous. So I hope you understand in which category human beings they come. They come in the viviparous or the oviparous. ठीक है, to which category the human beings they come, and to what type of fertilization human beings they show, internal or external. Clear? So that question I will give you. Viviparous, see here some examples are there. You can see here some birds and all that, they give rise to the eggs, so they are known as the oviparous. Now young ones to the adult. The individual when it get born or if it is coming out of the egg, it continue to grow till they become the adult. हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, बच्चा होता है, छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता रहता है, होता रहता है। ठीक है, जब तक वो adult नहीं बन जाता। ठीक है, clear? Here they have discussed about the life cycle of the silkworm that we have done in the class 7. वहाँ पे देखा था हमने, एग है, लार्वा है, कैटरपिलर, प्यूपा, एडल्ट। क्लियर? सिमिलरली हियर दे हैव गिवन द लाइफ साइकिल ऑफ द व्हाट, फ्रॉग, लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग। फ्रॉग में भी ऐसे ही होता है, फ्रॉग्स फर्स्ट ऑफ ऑल दे ले द एग्स, फिर नई स्टेज आती है टेडपोल, हमने देखी होगी आप लोगों ने, फिर टेडपोल के अंदर थोड़ी और स्टेजेस में चेंज आता है और अल्टीमेटली एक अडल्ट फ्रॉग बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बात की हुई है कैटरपिलर प्यूपा के बारे में। क्लियर? सो दिस चेंजेस, नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट हियर, व्हेन द लार्वा इन द केस ऑफ द वी कैन से द फ्रॉग, ठीक है, द लार्वा ऑफ द फ्रॉग
later on it become the tadpole, then they transform into the adult which are capable of jumping and swimming, मतलब adult पूरा बन जाता है. So this transformation of the larva into the adult through the changes which are occurring in that is known as the metamorphosis. ये important है. What do you understand by metamorphosis? Clear? Is that clear? So I hope metamorphosis, the changes which occurs in the larva to becomes the adult, that is known as the metamorphosis. Now the another part, asexual reproduction. Asexual reproduction, the type of reproduction where single individual is required, no two parent are required, मदर फादर की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं. ठीक है. नाउ वी विल सी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने प्लांट्स में तो की थी हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 7th क्लास में. सो हियर वी विल सी द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज शोइंग द बडिंग इन द हाइड्रा. ठीक है. इफ वी कैन सी दीज स्ट्रक्चर दैट यू आर एबल टू सी, दे आर लुकिंग लाइक द एडल्ट लेटर ऑन. तो स्मॉल बड अपीयर्स देयर. ठीक है. लेटर ऑन दिस बड जो है ये लिटिल बिट ग्रो एंड मोर ग्रो एंड लेटर ऑन इट दिस स्ट्रक्चर फ्रॉम हेयर इट गेट डिटैच. ये इससे छूट जाता है. ठीक है. व्हेन इट गेट डिटैच्ड देन इट ग्रो इनटू द न्यू इंडिविजुअल. क्लियर? सो यू कैन सी हियर इन द हाइड्रा हाउ डू द हाइड्रा दे डिवाइड. हाइड्रा में कई बार एक या एक से ज़्यादा भी इस तरह के बल्जेस आ जाते हैं. ये न्यू इंडिविजुअल हैं और इनको हम बर्ड्स बोलते हैं. ठीक है. जैसे 7th क्लास में हमने किया था कि ईस्ट स्ट्रक्चर अगर हम बताएं, ईस्ट ऐसे होता है, उसके बीच में छोटी छोटी बर्ड्स आनी शुरू हो जाती हैं ऐसे, और वो बर्ड्स बाद में लेटर ऑन ब्रेक होती है और नया फ्रेगमेंटेशन से जो उससे टूट के नया बन जाता है. तो इसी तरह हाइड्रा में भी न्यू इंडिविजुअल जो हैं वो एक आउटग्रोथ के फॉर्म में एक सिंगल पेरेंट से निकलते हैं. तो सिंपल सी बात है, डेफिनेशन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज नोन एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? Now they have given, because they are developing from the birds in the hydra, so that method is known as the budding method. So that's why it's written here budding in hydra. ठीक है. Second method is the amoeba. Second method of asexual reproduction is usually in the amoeba, and that method is known as the binary fission. What is known as the binary fission? Binary fission कैसे होता है प्रोसेस देखिए. इसके अंदर थोड़ा सा, सबसे पहले बाइनरी फिजन में न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू करता है, फिर पूरी तरह से न्यूक्लियस साइड हो जाता है, और फिर उसके बाद जो है जो पेरेंट जो अमीबा है वो डिवाइड करके डॉटर अमीबे बना देता है. ठीक है. देखिए प्रोसेस क्या है. इट इज़ द प्रोसेस of the reproduction by which the division of the nucleus into the two nuclei take place, then followed by the division of the body into the two, and each part receive the nucleus. So finally एक अमीबा से दो नए अमीबा बन जाते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम? बाइनरी फिजन. दिस टाइप ऑफ द asexual reproduction is known as the बाइनरी फिजन. ठीक है. एनिमल की बॉडी एक से दो में कन्वर्ट हो जाती है. क्लियर? बहुत सारे मेथड हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. एक बड़ा ही सिंपल केस बताया मैंने ये वाला. दिस इज द एग्जांपल ऑफ द क्लोनिंग. ठीक है. क्लोनिंग एक बहुत अच्छा एग्जांपल है. आजकल क्लोनिंग की जाने लग गई है. सबसे पहले वी कैन से सक्सेसफुली एक क्लोन किया गया था. एक शीप थी, उसका नाम था डॉली. नेम ऑफ द शीप वाज डॉली. ठीक है. इन 1996 इट वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड. क्लियर? इसमें कैसे करते हैं क्लोनिंग का कुछ आइडिया बताइए. इयान विल्मट एक साइंटिस्ट था जिन्होंने रोजलिन इंस्टीट्यूट एडिनबर्ग में स्कॉटलैंड में किया था. तो क्लोनिंग किस तरह से की उन्होंने, अब देखिए यहाँ पे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द क्लोनिंग में एक सेल निकाला उन्होंने उसके मेमरी ग्लैंड से. ठीक है. उसके मेमरी ग्लैंड से एक सेल निकाला और एक एग ऑब्टेन किया उन्होंने एक दूसरी शीप से. उस एग में से न्यूक्लियस निकाल दिया. ठीक है. और उसका जो न्यूक्लियस जो मेमरी ग्लैंड से लिया था वो उसके अंदर डाल दिया गया. ठीक है. और फिर इस एग को बाद में उन्होंने इम्प्लांट कर दिया, और नॉर्मली फिर फाइनली उससे क्या बन गई? डॉली. क्लियर? नाउ हाउ टू एक्सप्लेन दिस आई विल शो यू हेयर आल्सो. यू कैन सी हेयर कैसे करते हैं क्लोनिंग.
क्लोनिंग इज वैसे आसान प्रोसेस, इट इज़ नॉट द इजी प्रोसेस. क्लोनिंग मेथड इज देयर. वी टेक वन एग, ठीक है. नाउ एग के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस. बट इफ यू रिमेंबर दिस न्यूक्लियस कंटेन ओनली एन, मतलब हाफ. एन इज इक्वल टू 23. नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में यहाँ पे क्या होता है? स्पर्म ऐड करता है. स्पर्म जो है वो 23 क्रोमोसोम ऐड करता है उसके अंदर, और फिर वो स्ट्रक्चर बनता है जाके जाइगोट. ऐसे ही होता है ना, जिसमें बन जाता है 2n इज इक्वल टू 46. अब क्लोनिंग में क्या करेंगे? क्लोनिंग में वी टेक द एग, वी टेक आउट द न्यूक्लियस. इस न्यूक्लियस को टेक आउट करेंगे, बाहर निकाल लेंगे. न्यूक्लियस बाहर निकाल लिया, सिंगल खाली एग रह गया ये, इसमें से ये निकाल लिया हमने बाहर, ठीक है. अब क्या करेंगे? हमारी बॉडी का कोई भी सेल लेंगे, चाहे वो स्किन सेल है, कोई सा भी सेल है, उस सेल के अंदर हमारे क्रोमोसोम जो हैं उसके अंदर होते हैं सेल. नॉर्मल सेल जो हैं स्पर्म और एग को छोड़ के बाकी सब के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं 2n इज इक्वल टू 46. तो सपोज करो ये स्किन सेल लिया हमने, इसके अंदर जो ये न्यूक्लियस है इसके अंदर ये नंबर है क्रोमोसोम्स का. तो हमने ये न्यूक्लियस यहाँ से निकाल के इसको इसके अंदर डाल दिया. क्लियर? मतलब बाहर की बाउंड्री कौन सी है? एग की है, और अंदर न्यूक्लियस कहाँ से ले लिया हमने? स्किन से. इस एग को कहाँ कर दो इम्प्लांट? यूट्रस में, ठीक है. और ये डेवलप करेगा पूरा एग्जैक्ट क्लोन. इज दैट क्लियर? ओके.